تصور کریں کہ ایک انتہائی تنگ سمندری راستہ تمام سرمایہ کاروں کے پورٹ فولیو کی قسمت کا فیصلہ کر رہا ہو۔ جی ہاں، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اب محض ایک علاقائی خبر نہیں رہی، اس نے عالمی کموڈیٹیز مارکیٹس میں ایک شدید بے چینی یعنی خوف پیدا کر دیا ہے، خاص طور پہ جب اسٹریٹ آف ہارمونز کی ممکنہ بندش کے خدشات سامنے آتے ہیں تو مارکیٹس میں ایک پینک پھیل جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ یہ سمندری راستہ عالمی تیل اور LNG کی ٹریڈ کے لیے ایک طرح سے شہرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں ہونے والی ذرا سی رکاوٹ انرجی کی قیمتوں میں اتنا غیر متوقع اتار چڑھاؤ پیدا کر رہی ہے جو پوری دنیا کی معیشتوں کو ہلا سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور آج کی اس گہری تحقیق کا مقصد یہی ہے کہ ہم فراہم کردہ ڈاکیومنٹس کے ایک ایک ہند سے ایک ایک ڈیٹا پوائنٹ کی تہہ تک جائیں۔ ہم باریک بینی سے جائزہ لیں گے کہ اس عالمی تلاطم کے بیچ آخر وہ کون سے حقائق ہیں جو شور میں دب گئے ہیں۔ اگر ہم عالمی مارکیٹس کا حال دیکھیں تو کیا لگ رہا ہے وہاں؟ دیکھیں، اگر عالمی انڈیکس کی بات کریں تو ٹرینڈز بالکل مکسڈ ہیں۔ امریکی اور یورپین مارکیٹس بظاہر اس جھٹکے کو برداشت کر رہی ہیں، جیسے S&P 500 میں 0.50% اضافہ ہوا، ڈاؤ جونز بھی پازیٹیو 0.4% رہا، نیسڈیک میں 0.2% کا اضافہ دیکھا گیا، اور FTSE 100 بھی پازیٹیو 1.2% پر بند ہوا۔ اچھا، یعنی وہاں اتنا مسئلہ نہیں، لیکن ریجنل مارکیٹس کا کیا حال ہے؟ اصل کہانی وہی ہے۔ قطر کے QE انڈیکس 2.8% گر گیا۔ UAE میں تو صورتحال اس قدر غیر یقینی تھی کہ کچھ دیر کے لیے ٹریڈنگ معطل کرنی پڑی، اور جب واپس کھلی تو مارکیٹ 2.8% گر چکی تھی۔ یہاں تک کہ سعودی عرب کا تداول انڈیکس، جہاں پریکٹیکلی تیل کی قیمتیں بڑھنے کا فائدہ ہونا چاہیے تھا، وہ بھی پروفٹ ٹیکنگ کی وجہ سے 0.5% مائنس میں گیا۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کا پاکستان پر کیا اثر ہوا۔ کیا ہم بھی اسی پینک کا شکار ہیں؟ جی، PSX یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس عالمی منظرنامے سے الگ تو نہیں رہ سکتی تھی۔ جیو پولیٹیکل سیلنگ پریشر کی وجہ سے KSE 100 انڈیکس انتہائی غیر یقینی صورتحال کا شکار رہا۔ ہفتے کے اختتام پر انڈیکس 0.73% یعنی 1126 پوائنٹس گر کر 152,740 پوائنٹس پر بند ہوا۔ 152,740 پر۔ کیلنڈر ایئر کی پرفارمنس کیا چل رہی ہے ابھی؟ 26 یعنی CY 26 TD کی کارکردگی دیکھیں تو اب تک یہ انڈیکس 12.2% گر چکا ہے، اور یاد رہے کہ 9 مارچ تک تو یہ گراوٹ 16.9% تک پہنچ گئی تھی۔ مارکیٹ میں ایک واضح دباؤ ہے۔ رکیے، یہ تو ایک مسلسل گراوٹ کی تصویر بن رہی ہے۔ تو کیا سننے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مارکیٹ کے بنیادی ڈھانچے یعنی فنڈامنٹلز میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، یا یہ سب صرف ایک ایکسٹرنل مایوسی ہے؟ یہاں پر ڈیٹا اپنا اصل کمال دکھاتا ہے۔ بظاہر انڈیکس گر رہا ہے، لیکن اگر ہم فنڈامنٹلز کو دیکھیں تو وہ حیران کن حد تک مضبوط ہے۔ میں بتاتا ہوں کیوں۔ KSE 100 اس وقت 7.5x کے PE پر ٹریڈ کر رہا ہے اور 6.8% کی شاندار ڈیویڈنڈ ییلڈ دے رہا ہے۔ یعنی کمپنی سستے داموں مل رہی ہیں اور منافع بھی ٹھیک ٹھاک دے رہی ہیں۔ بالکل، اگر ہم فارورڈ ویلویشنز دیکھیں تو فارورڈ FY26 کے لیے PE 7.3x اور FY27 کے لیے 6.6x ہے۔ اب ذرا اس کا موازنہ مارکیٹ کی 10 سالہ ایوریج سے کریں جو کہ 8x ہے۔ اوہ واو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت اپنی 10 سالہ ایوریج کے مقابلے میں تقریباً 18% ڈسکاؤنٹ پر کھڑے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے بلو چپ کمپنیز کی کلیئرنس سیل لگ رہی ہے۔ لیکن کیا جو میکرو اکنامک اشاریے ہیں وہ بھی اس امید کی تائید کرتے ہیں؟ ہاں، بالکل کرتے ہیں۔ کچھ حیران کن میکرو ڈیٹا سامنے آیا ہے۔ مثال کے طور پر آٹو فائنانسنگ فروری 2026 میں 35.3% سالانہ اضافے کے ساتھ 337 ارب روپے ہو گئی ہے۔ ایک سیکنڈ، پچھلے سال اسی عرصے میں یہ کتنی تھی؟ پچھلے سال یہ 295 ارب روپے تھی۔ حتیٰ کہ منتھلی بیسس پر یعنی ماہانہ بنیادوں پر بھی اس میں 2.6% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس معاشی سختی میں گاڑیوں کی فائنینسنگ کا بڑھنا ایک بہت اہم اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ فروری 2026 میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی FDI کا وہ مسلسل انخلا جو ایک درد سر بنا ہوا تھا وہ رک گیا ہے، اور $214 ملین کی خالص سرمایہ کاری ملک میں آئی ہے۔ یہ تو اچھی خبر ہے۔ تو اب آگے کیا دیکھ رہی ہے مارکیٹ؟
बस अब मार्केट को महंगाई यानी इन्फ्लेशन के डेटा का बेसब्री से इंतजार है जो आगे के मॉनेटरी फैसलों का रुख तय करेगा। ये तो हो गई मैक्रो पिक्चर। अब जरा मार्केट के अंदरूनी इशारियों पर बात करते हैं। क्या पूरी मार्केट ही दबाव में थी या कुछ सेक्टर्स बच निकलने में कामयाब हुए? बाकी इंडिसेस के नंबर्स क्या कहते हैं? अगर हम मार्केट के तमाम इंडेसेस का अहाता करें तो केएसई ऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,068 अरब रुपए यानी 61 अरब डॉलर रही, जो कि पिछले हफ्ते से 1.5% कम है। केएसई ऑल इंडेक्स 91,858 पर बंद हुआ, जो 0.5% गिरा। केएसई 30 इंडेक्स 46,224 पर रहा, इसमें 1.8% गिरावट आई। केएमआई 30 इंडेक्स 219,131 पर बंद हुआ और ये 0.5% गिरा। और बैंकिंग सेक्टर का क्या हाल रहा? उनको तो काफी मार पड़ी है ना? जी, सबसे बड़ी मार बैंक इंडेक्स को ही पड़ी। बीकेआईटी इंडेक्स 42,104 पर रहा, जो सबसे ज्यादा यानी 4.5% गिर गया। इन सब के बरक्स हैरानकुन तौर पर सिर्फ ऑयल एंड गैस का इंडेक्स ओजीटीआई वही पॉजिटिव इंडेक्स था, जो 1.3% इजाफे के साथ 32,078 पर बंद हुआ। ओजीटी का पॉजिटिव रहना तो समझ में आता है, आलमी सतह पर तेल की कीमतें जो उछल रही हैं, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का जो हाल हुआ है वो सच में परेशान कुन है। एवरेज वॉल्यूम 29% गिरकर सिर्फ 320 मिलियन शेयर्स रह गया है और एवरेज वैल्यू भी 25% कम होकर सिर्फ $71 मिलियन पर आ गई है। इतनी सस्ती वैल्यूएशंस के बावजूद मार्केट में ट्रेडिंग का ये सिकराव वाज़ेह तौर पर इन्वेस्टर्स के शदीद मोहतात रवैये को जाहिर करता है। आप ठीक कह रही हैं, लिक्विडिटी खुश्क हो रही है, लोग साइडलाइंस पर बैठे हैं, लेकिन इस कम हजम के बावजूद कुछ वॉल्यूम लीडर्स नुमाया रहे। बीओपी में 31.8 मिलियन हिस्सास का काम हुआ और ये 25.9 पर बंद हुआ। केईएल में 19.9 मिलियन का वॉल्यूम रहा और क्लोजिंग 7.6 थी। एफएनएल की क्लोजिंग 1.3 पर हुई और वॉल्यूम 13.3 मिलियन रहा। एनबीपी और डब्ल्यूटीएल दोनों में 12.5 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। एनबीपी की क्लोजिंग 181.3 और डब्ल्यूटीएल की 1.2 पर हुई। यहाँ मुझे एनबीबी का जिक्र बहुत नुमाया लग रहा है। इस अकेली कंपनी ने इंडेक्स का क्या हाल किया है? जरा सेक्टर्स और कंपनीज के किरदार की तह में चलते हैं कि किसने इंडेक्स को गिराया और किसने सहारा दिया। मनफी पॉइंट शामिल करने वाले सेक्टर्स में, जैसा मैंने पहले बताया, बैंक्स का दबाव सबसे ज्यादा था। बैंक्स ने 515 पॉइंट्स की कटौती की, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने 341, फर्टिलाइजर ने 255, लेदर ने 86 और पावर सेक्टर ने 85 पॉइंट्स मार्केट से कम किए। और कंपनीज के लिहाज से? कंपनीज में आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। एनबीपी ने अकेले मार्केट के 471 पॉइंट्स गिराए। इंग्रो की वजह से 302, एचबीएल से 290, एफएफसी से 204 और एचयूबीसी की वजह से 92 पॉइंट्स मनफी हुए। ये तो सारे बड़े नाम हैं जो मार्केट को नीचे खींच रहे थे। तो फिर पॉजिटिव किरदार अदा करने वाले कौन थे जिन्होंने मार्केट को मुकम्मल क्रैश होने से बचाया? पॉजिटिव किरदार में ईएनपी सरे फहरिस्त रहा, जिसने 279 पॉइंट्स दिए। टेक्नोलॉजी ने 76, ऑटो पार्ट्स ने 21, पेपर एंड बोर्ड ने 16 और केबल एंड इलेक्ट्रिक ने 13 पॉइंट्स का इजाफा किया। कंपनीज में देखें तो एमसीबी ने सबसे ज्यादा 197 पॉइंट्स दिए, यूबीएल ने 163, एसवाईएस ने 122, पीपीएल ने 100 और ओजीडीसी ने 79 पॉइंट शामिल किए। और अगर हम बड़े नफा और नुकसान वाले शेयर्स की बात करें तो गेनर्स की फहरिस्त में पीकेजीपी ने हैरानकुन 22% का मुनाफा दिया, एबीओटी में 10%, आईबीएफएल में 9%, बीएनडब्ल्यूएम में 9% और केओएचसी में 6% का इजाफा हुआ। दूसरी तरफ लूजर्स में एनबीपी सबसे नुमाया रहा जो 12% गिर गया, एआईसीएल 10%, पीएबीसी 8%, यूनिटी 7% और एसआरवी भी 7% गिरा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल परेशान कर रहा है। ये सारा डेटा अपनी जगह, लेकिन जो असल खिलाड़ी हैं यानी मकामी और गैर मुल्की सरमायाकार, वो इस सूरत हाल को कैसे खेल रहे हैं? उनके सरमाए का बहाव यानी एफआईपी और एलआईपी डेटा क्या बता रहा है? ये इस पूरे तज्जिए का मेरा ख्याल है सबसे अहम हिस्सा है। अगर हम डेटा का अहाता करें तो एफआईपी यानी
फॉरेन इन्वेस्टमेंट में मजमूई तौर पर $9.91 मिलियन का इनखला यानी सेल हुआ। अगर हम इसमें से डेट यानी कर्ज को निकाल दें तो ये खालिस सेल $9.94 मिलियन बनता है। और इसके बिल्कुल बरक्स LIP यानी मकामी सरमायाकारी में बिल्कुल उतनी ही $9.91 मिलियन की बाइंग की गई और बगैर कर्ज के ये बाय $9.94 मिलियन बनता है। जाहिर तो यही लग रहा है कि गैर मुल्की घबराकर माल बेच रहे हैं और मकामी इन्वेस्टर्स वही माल खरीद रहे हैं। लेकिन क्या ये ट्रेंड हर सेक्टर में एक जैसा है, क्योंकि अक्सर शायद तफसीलात में छुपे होते हैं? सही कहा आपने, और इसीलिए हमें इसको सेक्टर के लिहाज से हर्फ बहर्फ देखना होगा। देखें, कमर्शियल बैंक्स में FIP की तरफ से 6.07 की सेल हुई और LIP ने 6.07 की बाइंग की। फर्टिलाइजर में FIP ने 0.23 सेल किया और LIP ने 0.23 बाई किया। सीमेंट में गैर मुल्की ने बड़ा इनखिला किया। FIP सेल 7.22 रहीं और LIP बाय 7.22। एक सेकंड, सीमेंट से गैर मुल्कियों ने $7.22 मिलियन निकाल लिए। इसका मतलब है वो हमारे रिवायती इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से मुकम्मल हाथ खींच रहे हैं। जी हाँ, बज़ाहिर यही लगता है, लेकिन अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखें। पावर सेक्टर में रुझान उलट था। FIPI की बाइंग 0.38 और LIPI की सेलिंग 0.38 थी। ENP में भी FIPI ने 0.68 बाई किया, जबकि LIPI ने 0.68 सेल किया। OMCs में FIPI की बाइंग 0.01 और LIPI की सेल 0.01 रही। अच्छा, यानी उन्होंने इन सेक्टर्स में पैसा लगाया? बिल्कुल। फूड में FIPI ने 1.69 बाय किया, LIPI ने 1.69 सेल किया। टेक्सटाइल में FIPI की सेल 0.14 और LIPI की बाइंग 0.14 थी। अब सबसे अहम, टेक्नोलॉजी में गैर मुल्कियों ने 2.01 बाय किया और मकामी लोगों ने 2.01 सेल किया। दीगर तमाम सेक्टर्स में FIPI ने 1.05 सेल किया और LIPI ने 1.05 बाय किया। ओह, तो इसका मतलब है कि कहानी वो नहीं जो सतह पर नजर आ रही थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि गैर मुल्की सरमायाकार अंधाधुन नहीं बेच रहे। वो मुस्तकबिल की तरक्की और एक्सपोर्ट वाले सेक्टर्स यानी टेक्नोलॉजी, ENP और फूड में पैसा लगा रहे हैं। उन्हें हमारी टेक ग्रोथ पर भरोसा है, जबकि मकामी सरमायाकार अभी भी रवायती ज़हनियत के तहत बैंक्स और सीमेंट को संभाल रहे हैं। जबरदस्त, ये है वो अंदरूनी कहानी जो सिर्फ नंबर्स पढ़ने से समझ नहीं आती। चलें, अब चलते हैं उन टॉप पिक्स की तरफ जिनकी निशानदेही इस गहरी तहकीक में की गई है। एनर्जी, ऑयल और रिफाइनरी से शुरू करते हैं। OGDC और PPL दोनों को बुनियादी पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा बताया गया है। इसकी ठोस वजह क्या है? क्या सिर्फ तेल की आलमी कीमतें वजह हैं? आलमी कीमतें तो एक वक्ती मुहर्रिक हैं। असल वजह इनके तवील मुद्दती असासे हैं। OGDC की कहानी बहुत दिलचस्प है। इस कंपनी का अबू धाबी के ऑफशोर ब्लॉक 5 में PIOL के जरिए 25% हिस्सा है और यहां से पैदावार 2028 में मुतवक्के है, जो लॉन्ग टर्म कैश फ्लो लाएगी। और रेको दिक का भी कुछ था इसमें। एग्जैक्टली। इससे भी बड़ी बात, OGDC और PPL दोनों कंपनीज का रेको दिक के अजीम मंसूबे में PMPL के जरिए 25% बिलवास्ता हिस्सा है। सुनने वालों के लिए यह समझना जरूरी है कि यह एक गेम चेंजर है। इससे माली साल 2032 यानी FY32 से सालाना 150 से $200 मिलियन का डिविडेंड मिल सकता है। मजीद ये कि PPL का बलूचिस्तान में BLZ प्रोजेक्ट भी है, जिसकी मौजूदा खालिस मालियत यानी NPV 53.4 अरब रुपए बनती है, जो सीधा सीधा 20 रुपए फी शेयर के बराबर है। वाओ, यानी ये कंपनियां अब महज मकामी एक्सप्लोरर नहीं रहीं, बल्कि आलमी सतह पर माइनिंग और ड्रिलिंग के मुनाफे में हिस्सेदार बन रही हैं। और PSO और ATRL के बारे में क्या ख्याल है? इनका तो डायरेक्ट ताल्लुक अवाम की जेब और पेट्रोल पंप से है। PSO और ATRL के लिए मौजूदा रेगुलेटरी माहौल बहुत साजगार बन रहा है। पेट्रोल यानी MS और डीजल यानी HSD की कीमतों में हाल ही में 55 रुपए का इजाफा हुआ है। इसका सीधा मतलब है इन कंपनियों के लिए जबरदस्त इन्वेंट्री गेन। जब पुराना सस्ता खरीदा हुआ तेल महंगे दामों बिकता है तो बैलेंस शीट पर मुनाफा उछल पड़ता है। तो एक्स रिफाइनरी कीमतों में कितना फर्क आया?
एक्स रिफाइनरी कीमतें एमएस के लिए 78.24 रुपए और एचएसडी के लिए 36.29 रुपए बढ़ी हैं। इस इजाफे की बदौलत अकेले पीएसओ को 26.74 रुपए फी शेयर का इन्वेंट्री गेन हो सकता है। अगर हम एक वसी सिनेरियो देखें कि खाम तेल अगर 90 से $105 तक जाता है तो पीएसओ की ईपीएस 3.13 से छलांग लगाकर 15.95 तक बढ़ सकती है। इसी तरह एपीएल की ईपीएस 2.56 से 12.98, डब्ल्यूएएफआई की 1.48 से 6.82 और हस्कोल की ईपीएस 0.18 से 0.85 तक जा सकती है। ये मार्जिन्स तो वाकई आंखें खोल देने वाले हैं। और एटीआरएल की कारकर्दगी के पीछे जो क्रैक स्प्रेड्स का कमाल है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, क्रैक स्प्रेड बुनियादी तौर पर वो मुनाफा है जो रिफाइनरी कच्चे तेल को साफ करके पेट्रोल या डीजल बनाने पर कमाती है। एटीआरएल के लिए एचएसडी का क्रैक इस वक्त $31.8 पर है और एमएस का $17.5 है। अब जरा मुवाजना करें पूरे माली साल की अब तक की एवरेज यानी एफवाईटी एवरेज। बिल तरतीब सिर्फ $18.9 और $9.0 थी। ये स्प्रेड्स तकरीबन दुगने हो चुके हैं, जो इनके मुनाफे को आसमान पर ले जा रहे हैं। अच्छा, एनर्जी की बात हो रही है तो पावर सेक्टर में एचयूबीसी की बात करते हैं। बेस प्लांट के 2 यूनिट्स तो दीगर जीएनसीओज के मुकाबले की वजह से मौखर किए गए हैं, तो फिर इन पर इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? क्योंकि हुसेप्ट सिर्फ बिजली बनाने वाली कंपनी नहीं रही, वो अपनी बका और फैलाव के लिए जबरदस्त स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। इनके बाकी यूनिट्स को के इलेक्ट्रिक को सप्लाई फराहम करने के लिए कोयले की तब्दीली पर काम हो रहा है। इसके अलावा एक नए ऑयल टर्मिनल और एल्यूमिनियम स्मेल्टर जैसे मंसूबों पर गौर हो रहा है। और सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि इनका ज़ैली इदारा आर्क मेटल्स, तांबे, सोने और लिथियम की दरियाफ्त पर काम कर रहा है। वो अपने आप को एक माइनिंग पावर हाउस में तब्दील कर रहे हैं। दीगर टॉपिक्स में बैंक्स, फर्टिलाइजर और ऑटो सेक्टर भी शामिल हैं। एनबीपी को किस बुनियाद पर चुना गया? हालांकि हमने देखा कि इसने इंडेक्स को अकेले 471 पॉइंट्स नीचे गिराया। वक्ती गिरावट अपनी जगह, लेकिन तवील मुद्दती सरमायाकारी में 2 चीजें देखी जाती हैं: पायदार डिविडेंड ग्रोथ और बैलेंस शीट का फैलाव। एनबीपी इन दोनों महजों पर इंतहाई मुस्तहकम खड़ा है। और फर्टिलाइजर में एफएफसी पर तो वाज़े दबाव नजर आ रहा है। 2MCY26 में मजमूई यूरिया सेल्स 41% गिरकर 468 के टन रह गईं और एफएफसी की अपनी सेल्स भी 9% गिरकर 319 के टन रह गई हैं। फिर ये टॉप पिक कैसे हुआ? ये गिरावट स्ट्रक्चरल नहीं है, बल्कि वक्ती और सीजनल है। किसान बुआई के सीजन का इंतजार कर रहा है। जैसे ही खरीफ की बुआई का सीजन शुरू होगा, इसमें जबरदस्त बहाली होगी। और सबसे बड़ी बात याद रखें कि एफएफसी मुल्क का वाहिद डीएपी प्रोड्यूसर है। इनकी इजारादारी है जो इन्हें एक मुनफरद मार्केट पोजीशन देती है। इनका हदफ 6443 रुपए फी शेयर मुकर्रर किया गया है, जो दिसंबर 2026 यानी एसओटीपी डेक 26 के लिए है। मुझे यहाँ एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मुल्क में तामीराती काम रुका हुआ है, मुआशी सुस्त रवी है, लेकिन इस रिपोर्ट में सीमेंट सेक्टर से एलयूसीके को चुना गया है और इसका हदफ भी 620 रुपए दिया गया है। ये बुनियादी मंतक के खिलाफ नहीं लग रहा? बज़ाहिर ऐसे ही लगता है, लेकिन अंदर की कहानी सीमेंट की है ही नहीं। लक एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई करके मायशी सुस्तरवी को मात दे सकती है। इन्हें शरह सूद में कमी और रुपए के मुस्तहकम होने का बराह रास्त फायदा इनके ऑटोज और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में हो रहा है। ऑटोज के शोबे में 13% का CAGR मुतवक्के है और इलेक्ट्रॉनिक्स में इनकी 61% कैपेसिटी इस्तेमाल हो रही है, जिसमें 10% CAGR मुतवक्के है। इनकी कमाई अब सिर्फ सीमेंट की बोरियों पर मुनहसर नहीं रही। कमाल है। चले अब हम इस तज्जिए के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम सरमायाकारों के लिए एक मुकम्मल नक्शे यानी एक मैप का दर्जा दे सकते हैं। ये एक मास्टर रिकमेंडेशन लिस्ट है। हम एक एक करके इस नक्शे की तमाम मंजिलों को बारीक बीनी से देखेंगे ताकि सुनने वालों के सामने तमाम कंपनीज की मौजूदा कीमत, टारगेट प्राइस, मुतवक्का रिटर्न और सिफारिश बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। शुरू करते हैं बैंक से। ठीक है, बैंक्स पर नजर डालते हैं।
BAFL की मौजूदा कीमत 65.5 है, टारगेट 88.0 है, रिटर्न 34.3% मुतवक्के है और इसकी सिफारिश बाय है। BAHL की कीमत 110.8, टारगेट 136.2, रिटर्न 22.9% और ये भी बाय है। HBL की कीमत 118.8, टारगेट 158.4, रिटर्न 33.3% और ये भी बाय की फहरिस्त में है। आगे चलें तो MCB की मौजूदा कीमत 231.5 है, टारगेट 270.3, मुतवक्के रिटर्न 16.7%, ये भी बाय है। MEBL की कीमत 239.5, टारगेट 297.8, रिटर्न 24.3% और सिफारिश बाय है। लेकिन इन सब में UBL बिल्कुल अलग ही खड़ा नजर आ रहा है। बिल्कुल। UBL की मौजूदा कीमत 368.7 है, इसका टारगेट 482.4 और ज़बरदस्त 39.5% रिटर्न के साथ ये भी कतई बाय है। इतने बड़े बेस पर 40% का रिटर्न वाकई मुतासिर कौन है। और फर्टिलाइजर सेक्टर का नक्शा क्या कहता है? फर्टिलाइजर सेक्टर के नक्शे को देखें तो एफर्ट की कीमत 201.0 है, इसका टारगेट 220.7, रिटर्न 20.8% और ये बाय है। जबकि FFC, जिसकी हमने अभी बात की, इसकी कीमत 494.0, इसका टारगेट बहुत ऊपर 712.6 है और इसका मुतवक्के रिटर्न पूरी लिस्ट में सबसे शानदार 53.4% है, ये भी बाय है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की कैटेगरी में एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। इस पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त में एंग्रो वाहिद स्क्रिप है जो होल्ड का दर्जा रखता है। इसकी मौजूदा कीमत 261.8 है और टारगेट भी बमुश्किल 262.5 है, जिसकी वजह से इसका रिटर्न महज 0.3% बनता है। मतलब यहाँ पैसा रोकने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। सही कहा। अब जरा ENP के नंबर्स देखें। मैरी की कीमत 3005.1, इसका टारगेट 3491.4, रिटर्न 16.2% और ये बाय है। OGDC की कीमत 123.6, इसका टारगेट 188.5, रिटर्न 52.5% और ये भी बाय है। PPL की कीमत 121.3 है, टारगेट 158.3 और मुतवक्के रिटर्न 30.5% के साथ बाय की सिफारिश है। OMC और रिफाइनरी में PSO की कीमत 185.1, इसका टारगेट 271.7 और 46.8% रिटर्न के साथ ये बाय है। ATRL की मौजूदा कीमत 331.4 है, इसका हदफ 447.8 है और 35.1% रिटर्न के साथ ये भी बाय है। ऑटो सेक्टर की तरफ आएं तो INDU की कीमत 1781.5 है, इसका टारगेट 2283.8 और रिटर्न 39.6% है, ये बाय है। सैजे की कीमत 1812.0, टारगेट 2581.0 और जबरदस्त 45.8% रिटर्न के साथ ये भी बाय है। रुकिए, ऑटोज में एक बड़ा शॉक भी है। आपने गौर किया कि इस पूरी वसी फहरिस्त में सिर्फ एक स्क्रिप ऐसा है जिसे सेल के लिए दिया गया है और वो है MTL। इसकी मौजूदा कीमत 497.7 है, जबकि इसका टारगेट ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ 407.2 है, जिसका मतलब है कि इसमें मनफी 12.2% का रिटर्न मुतवक्का है। इसीलिए इसे सख्ती से सेल की कैटेगरी में रखा गया है। ये वाकई नोट करने वाली बात थी। पावर और दीगर सेक्टर्स की बात करें तो HUBC की कीमत 195.2, टारगेट 230.0, रिटर्न 26.5% और सिफारिश बाय है। NPL की कीमत 65.5, टारगेट 104.0 और शानदार 62.0% रिटर्न के साथ बाय है। NCPL की कीमत 59.3, टारगेट 82.9, रिटर्न 43.3%, ये भी बाय है। लेकिन KAPCO के नंबर्स तो होश उड़ा देने वाले हैं। जी हाँ, KPLC की मौजूदा कीमत सिर्फ 26.9 है, लेकिन टारगेट 59.4 दिया गया है, जो कि 139.2% का गैर मामूली रिटर्न जाहिर करता है और ये बाय है। और आखिर में जो मुतफर्रिक यानी मिसलेनियस फहरिस्त है उसे देखें तो LCI की कीमत 222.2, टारगेट 383.0 और रिटर्न 77.8% के साथ बाय है।
एयरलिंक की कीमत 136.9, इसका टारगेट 241.2 और 81.0% रिटर्न के साथ ये भी बाय है। SYS जिसकी कीमत 126.4 है, इसका टारगेट 207.8 है, रिटर्न 66.3% है, ये भी बाय की फहरिस्त में है। और मुगल की कीमत 68.9, टारगेट 102.0, रिटर्न 50.7% और सिफारिश बाय है। और आखिरी नाम पेल का है जिसकी कीमत 37.6, इसका टारगेट 74.5 और ज़बरदस्त 98.1% मुतवक्का रिटर्न के साथ ये भी बाय है। सुनने वालों के लिए इन तमाम एदादो शुमार और मालूमात के इस समंदर का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि आलमी तनाव चाहे वो मशरिक़ वुस्ता हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वक्ती होते हैं। ये खबरें मार्केट में शॉर्ट टर्म दबाव पैदा करती हैं। सही। लेकिन वो कंपनीज जिनके बुनियादी उसूल ठोस हैं, जिनकी डिविडेंड यील्ड मजबूत है और जिनकी बैलेंस शीट तवील मुद्दती मंसूबों जैसे रेकोडालेस्किया टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स पर खड़ी हैं, उनमें की गई सरमायाकारी हमेशा तवील मुद्दती फ़ायदा देती है। जबरदस्त तज्जिया। और मैं इस गहरी तहकीक का इख्तिताम एक सवाल पर छोड़ना चाहूंगी। अगर पाकिस्तान की ये बुनियादी तौर पर मजबूत कंपनियां इस वक्त वाकई अपनी 10 साला एवरेज से 18% डिस्काउंट पर मिल रही हैं, तो जरा सोचिए जब आलमी सतह पर जियोपॉलिटिकल दबाव का ये प्रेशर कुकर ठंडा होगा तो क्या मार्केट एक जबरदस्त उछाल नहीं लेगी? या फिर क्या कुछ ऐसे अंदरूनी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो इन स्प्रेडशीट्स और नंबर्स की गिरफ्त में नहीं आ रहे, जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं? हाँ, ये वाकई सोचने का मकाम है।